परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप सारियां संगतां नितनेम कर्म अनुसार परमेश्वर दे चरना कमलों विखे बैठ करके गुरु साहिब जी महाराजियां दे नाम की आराधना करते हैं, ताकि जिहड़ा ये सुचज्जा जीवन परमात्मा ने बख्शिया है, इस जीवन काल दे अंदर मनुख की जिहड़ी दृष्टि है ये बिल्कुल सही टकाने ते रहे। क्योंकि अक्सर मनुख की जिहड़ी दृष्टि है ये दृष्टि ही मनुख नूं बड़ी जीवन इसदा बर्बाद करके रख दिंदी है। क्योंकि दृष्टि जिहड़ी है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी कहते ने कि जिहड़ा मनुख असंतुष्ट है उहदी दृष्टि जिहड़ी है इक्को जगह ते कदे रुकदी नहीं है। भगत जयदेव जी का उच्चारण किए हुए वचन ने लोभाद दृष्ट पर गृह जद विद आचरण। जिहड़े मनुख लोभ दे वस पै जांदे ने उन्हां दी जिहड़ी दृष्टि है लोभाद दृष्ट पर गृह जद विद आचरण, उन्हां दी दृष्टि हमेशा ही दूजियां ते रहिंदी है। ते जिहदी दृष्टि हमेशा दूजियां ते रहिंदी है उस मनुख नूं असंतुष्ट कहंदे ने, संतुष्ट नहीं है। क्योंकि धर्मी धर्म दे अर्थ ने संतुष्ट, धर्मी मनुख की निशानी है संतुष्ट होना, अधर्मी मनुख की निशानी है असंतुष्ट होना। असंतुष्टि तीन प्रकार की मनी गई है। परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, तीसरी है व्यक्तिगत असंतुष्टि। जिहड़े शरीर संतुष्ट ने ਉਹ ਤੇ धर्म के अंदर प्रवेश कर जाते ने, भावें वो किहो जे मर्जी लिबास दे विच होण, किसी भी मजहब दे होण, किसी भी जगह ते रहिंदे होवन, वो धर्मी मनुखां दी श्रेणी दे विच आ जाते ने। जिहड़े असंतुष्ट मनुख ने, जिहड़े अपने परिवार तो संतुष्ट नहीं है, कोई अपनी पत्नी तो संतुष्ट नहीं, कोई माँ बाप तो संतुष्ट नहीं, कोई पत्नी अपने पति तो संतुष्ट नहीं, कोई बच्चे अपने माँ बाप तो संतुष्ट नहीं है, कुछ माँ बाप अपने बच्चों तो संतुष्ट नहीं है। परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, समाज दे विच अनेकां तरह के काम धंधे करने, उन्हां काम धंधियां दे अंदर
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਓਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਦ ਵਿਦ ਆਚਰਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਾਏ ਧਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਾਏ ਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਗ੍ਰਹਿ ਜਦ ਵਿਦ ਆਚਰਣ। ਪਰਾਏ ਰੰਗ ਰੂਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਰੰਗ ਰੂਪ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਦ ਵਿਦ ਆਚਰਣ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਾਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਪਰਾਇਆ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਪਰਾਈ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਾਏ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਾਏ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਪਰਾਏ ਧਨ, ਪਰਾਏ ਘਰ, ਪਰਾਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
असंतुष्ट बनया रहेगा। तो वो मनुख ਜਿਹੜਾ हमेशा ही पराए धन वल भजदा है, पराए रंग रूप वल भजदा है, पराए पदार्थों के वल बड़ा भजदा है, ऐसा मनुख अपने जीवन को कोई बहुता उच्चा ते सुच्चा नहीं बना सकता। लुबाद दृष्ट पर गृह जद विद आचरण। मनुख कहता मेरे को बहुता बड़ा घर बार होवे, बहुता धन होवे, बड़ा बड़ा मेरा परिवार होवे, बड़ा कुछ होवे। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का यह फैसला है, कहते जिन्ना तेरे कोले वध पदार्थ होणगे, वध धन होवेगा, उवें तेरी दृष्टि जिहड़ी है वो हमेशा बाहर रहिंदी रहेगी। दृष्टि कोई तेरी बहुती चंगी नहीं होवेगी। हजे तक तो दृष्टि बाहर पराए घरां दे विच फिरदी है। ते मनुख कहता है कि परमात्मा मैनू इहो जिहा जीवन दे जिहड़े जीवन दे विच कोई भी दुख ना होवे, कोई भी दुख ना होवे। जीवन इहो जिहा चाहीदा। बीज किकरां दे बीजने ने, बिजौर दियां दाखां मंगदा है। जरा अपनी दृष्टि ते नज़र मार के तेरी दृष्टि कित्थे फिरदी है। अगर वाई जे दृष्टि सही नहीं है, एक वपारक रूप दे विच एक कर्म करना, एक अपनी किरत करनी गल वखरी है। किरत करनी वो गल वखरी दे विच आ जाती है। भाई बन्नों जी साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज दे चरनां विच दो सिख आए, महाराज किसे ऐसे गुरमुख दे दर्शन कराओ जिहड़ा गुरमुख भी होवे, धर्मी भी होवे ते वपार भी करदा होवे। हुण ये दो गल्लां एक जगह ते इकट्ठियां करनियां बहुत औखियां ने, वपार अते धर्म। अपनी किरत अते धर्म, वपार ते धर्म दोने एको जगह ते इकट्ठियां करनियां बहुत औखी गल है, नहीं हुंदियां। गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज ने उन्हां ਸਿੰਘਾਂ नूं कहा, कहण लगे भाई तुसीं चले जाओ। एक गुरमुख सज्जन ऐसा है जिहड़ा वपारी भी है ते धर्मी भी है। ते पता दस के गुरु अर्जन देव साहिब महाराज ने तोरता यूपी दे विच भाई बन्नों दे घर दा। भाई बन्नों दा जिहड़ा सी वपार बहुत वड्डा वपार सी। उहदा वपार तो होर भी बड़े करदा सी, पर घिओ दा वो ज़्यादा वपार करदा सी। ते बहुत वड्डे उहदे सी जिहड़ा सिस्टम चल रहा सी। वो भाई सिंह पुछदे पुछदे भाई बन्नों दे कोल उत्थे चले गए जिथे वो आप हट ते बह के घिओ वेच रहा सी। आप हट ते बह के लैन लगी है लोगों की, घिओ लेंदे ने ते भाई बन्नों जी घिओ पा रहे ने। एक मनुख कहन लग्या जी जिहड़ा रेट है तुसीं मैनूं ये घट कर दिओ। भाई बन्नों जी कहन लगे नहीं, ये मैं तुहानूं रेट घट नहीं करांगा, बिल्कुल भी नहीं घट करांगा। बड़े सख्त शब्दों के विच भाई बन्नों ने कहा कि लैके जाना तो लो, वरना वापस चले जाओ, पर मैं रेट नहीं घट करांगा। वो दूरों देख के कहन लगे भी ये तो सख्त शब्द ही वाले वरती जाता, पर महाराज ने सानू भेजा भी इहदे कोल है। शब्द भी बड़े सख्त ने दे, ते महाराज ने सानू भेजा भी इसदे कोल है। वो जिहड़े घिओ लैण आए सी ना भाई बन्नों तो, वो दोने सिंह पासे होके रह करन लग गए। भाई बन्नों ने फिर कोले सद लए, कहंदा भाई कोई गल नहीं, जे तुहाडे कोल पैसे ना नहीं ने कोई गल नहीं, कदे फिर दे जिओ, पैसे जद मर्जी दे जिओ, पर मैं तुहानूं घिओ दा रेट घट नहीं करांगा।
घट की नहीं करांगा, मैं तुहानू घट भी नहीं करांगा ते तुहानू वध भी नहीं लावांगा, इक्को रेट ते मैं बेचदा, पैसे जद मर्जी दे जाना, कोई गल नहीं। उन्हां दोनों गुरमुखां ने दूर खड़ के सोचा कि ते बड़े सख्त बंदा है, सख्त शब्दां की वरतों करता है, धंधा करना, व्यापारी बंदा है, तो बहुत बड़ा व्यापारी है। इन्ने नूं ये गुरमुख उहदे कोल चले गए भाई बन्नों दे। भाई बन्नों जी नूं कहण लगे, भाई साहब जी असीं तुहाडे कोल आए हाँ, तुहाडे दर्शन करन वास्ते आए हैं, ते असीं साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज के चरणों विचों आए हैं, उन्हां कोलों आए हैं, उन्हां दे दर्शन दीदारे करके। उन्हां ने सानूं तुहाडे कोल भेजिआ। जदों गुरु अर्जन देव साहब महाराज का नाम लेता तो भाई बन्नों जी अपनी दुकान दे विचों उठे। उन्होंने कहंदे जी चलो बहुत किरपा हो गई, तुहाडे दर्शन ते महाराज के दर्शन हो गए ने, तुहाडे दर्शन महाराज के दर्शन ने, जदों तुसीं परमात्मा के दर्शन करके आए हो। ये गल कौन कह सकता है? जिहदी दिव दृष्टि बिल्कुल सही होवे, जिहदी दृष्ट बिल्कुल इन बिन सही होवे, वो बंदा जिहड़ा परमात्मा के दर्शन करन गया है, उसे बंदे दे शरीर दे विचों भी परमात्मा के दर्शन कर लैंदा है, जिहदी दृष्ट सही होवे। जिहदी दृष्ट सही नहीं है, वो भावें लखां वारी परमात्मा के दर्शन कर ले, उन्होंने कदे हुंदे नहीं है। माफ़ करना, ये गल दी हामी गुरबाणी भरदी है। जे दृष्टि सही है तो जिहड़ा परमात्मा के दर्शन करके गया, उहदे दर्शनां दे विचों भी परमात्मा के दर्शन हो जाणगे। जे दृष्टि सही नहीं है तो लखां वारी कीते हुए परमात्मा के दर्शन भी तैनूं दर्शन नहीं होणगे। लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरण, भगत जयदेव जी का ये पंक्ति है। भगत जयदेव जी आंदे ये बचन ने, दर्शन दीदारे होए ने अज तुहाडे करके, गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी के दर्शन होए ने, घर विच ले गए। पहले तो भाई बन्नों ने उन्हां दा चरनार अमृत छकिया, उन्हां दे चरण धोते, चरण धो के उस पानी नूं पी लिया, जल नूं पी लिया। क्यों? कहंदे तुसीं गुरु अर्जन देव साहब महाराज के दर्शन करके आए। ये बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है। आओ भगत कीती, घर विच सत्कार दे नाल बिठाया गया। तुसीं भाई दूरों आए हो, पहले तुसीं इशनान पान करना या भोजन छकोगे, लम्मे सफ़र तो आए हो। भाई बन्नों जी फिर पुछते ने उन्होंने गुरमुखां नूं, गुरमुखो जिहड़ा तुसीं इशनान करना है ठंडे पानी दे नाल करोगे या गर्म पानी दे नाल करोगे? पुराने जमानिਆਂ ਦਾ समा कोई थके अके मनुख हुंदे सी, कहंदे गर्म पानी दे नाल इशनान कर लो तो सारा थकेवा लह जांदा सी। पुराने बजुर्गों की एक कहावत बनी है, कहंदे ठंडा खाइए तत्ता नहाइए फिर वैद देना जाइए। आप जी बैठे हो, तुहानूं इस गल का पता है। उन्होंने सोचा सी, कहंदे ते कोई व्यापारी बंदा है, जद ठंडे ते गर्म पानी की गल कीती ना ते उन्हां दे विचों एक मजाकिया रूप दे विच बोलदा है, भाई बन्नो कोई गल नहीं, पानी भावें ठंडा होवे भावें गर्म होवे, तेरे घर दे विच आए हैं, भावें सानू घ्यो दे नाल नवा दे, की गल है, तेरे घर दे विच ते कोई घाटा नहीं है। जद ये वचन किया ते भाई बन्नों ने काफ़ी टीन सी जिहड़े घ्यो दे मंगवा लए। पहले तो वो जगह ते घ्यो दे टीन डोले जिथे उन्होंने इशनान कराउणा सी, फिर उस जगह ते गर्म पानी डोल के ते गर्म पानी दे नाल वो जगह साफ की।
जिथे इशनान वो करन लगे दोनों गुरमुखां दे 4 चफेरे घ्यो दे टीन ही टीन रखते, कहन लगे लै जिन्ना तुहाडा चित्त करदा है उन्ना ही घ्यो डोल डोल के तुसीं घ्यो दे नाल नहाउंदे रहो, नहाउंदे रहो, इशनान करो घ्यो दे नाल। चलो इशनान तो उन्होंने की घ्यो दे नाल करना सी, इशनान किया जल दे नाल, शवश होके जद कोल बैठ गए। कहते प्रशादे पानी तो पहले सानू एक बचन तुहातों साझा करना तुहाडे नाल, ओ बचन दा साडे दा जवाब दिओ। भाई बन्नों जी कह लगे जो तुसीं कहना चाहुंदे हो पुछो, तुहाडे बचन तुहाडे सवाल दा जवाब देवांगे। भाई बन्नों नूं कहन लगे जद असीं तेरी दुकान दे कोल खड़े सी उदों ते बड़े सख्त शब्द वरतदा सी तूं, कहंदा सी मैं घ्यो दे विचों 1 रुपया भी आना भी घट करन वास्ते तैयार नहीं है, जे लैके जाना तो लै जाओ वरना ना लैके जाओ, पर इत्थे तुसीं घ्यो दे पीपे ढोली तुरे आउंदे हो, इत्थे घ्यो दे पीपे डोलण दी बजाए तुसी जरा उन्होंने घ्यो घट रेट ते दे देंदे फिर की होण लग्या सी। भाई बन्नों जी फिर उन्होंने गुरमुखां नूं समझाउंदे ने, गुरमुखो दुकान ते बैठा होया मैं एक व्यापारी हाँ, उत्थे बैठ के मैं अपनी किरत कमाई करदा, ते जिहड़ी मेरी किरत है उस दे विचों मैं कुछ ना कुछ नफा लैके घ्यो वेच दिना, वरना उस दे विचों इन्ना भी मैं रेट ते घ्यो नहीं वेचदा कि मैं आए गए दे बिल्कुल ही तो धन बहुता लै लवां, इक्को रेट लेना बिल्कुल, अमीर आवे चाहे गरीब आवे, वो मेरी किरत है, वो मेरा व्यापार है, उहदे विच मैनूं सख्त शब्दां दी जिहड़ी है वो वरतों करनी पैंदी है। कहंदे इत्थे फिर कहंदे इत्थे इस करके घ्यो डोलिया गया है, इत्थे गल धर्म दी आ गई, इत्थे धार्मिक गल आ गई है, इत्थे धर्म दी गल है, और तुसी उस पातशाह दा आके नाम लैता जेड़े सारी दी सारी सृष्टि नूं करोड़ां मन अनाज दे रहे ने, मैं उस पातशाह दे उत्तों दी सारे दा सारा व्यापार वारन वास्ते तैयार खड़ा। भाई बन्नों जी कहन लगे इत्थे गल धर्म दी है, व्यापार दी गल नहीं है, धर्म तो दी सारा कुछ वारिया जा सकता है, अपनी किरत करो कमाई करो, पर धर्म दे विच कमाई करन दी गल नहीं आउंदी, धर्म दे विच कमाई करन दी गल नहीं आउंदी। भाई बन्नों जी कहंदे इत्थे सिर्फ धर्म है, इस धर्म दे उत्तों दी सारी किरत सारा परिवार जो कुछ भी मैनूं वारना पवे मैं वारन वास्ते तैयार बैठा, क्योंकि इत्थे गल धर्म दी है, धर्म तो भी सारा कुछ वारिया जा सकता है, हाँ किरत अपनी जिहड़ी मर्जी करो, ते धर्म दे विच व्यापार नहीं चलता। अजोका जिहड़ा समा चल रहा है ये किहड़ा ऐसा धर्म है जिस दे विच व्यापार ना चलता होवे, सारे थां ते चलता है, सब कुछ वेचिया जा रहा है, सारा व्यापार चल रहा है। भाई बन्नों जी कहन लगे इत्थे गल धर्म दी है, व्यापारक गल नहीं है, धर्म तो दी मैं सारा कुछ कुर्बान कर देना। ते जद ये वचन उन्होंने कीते उन्हां गुरमुखां दी बड़ी संतुष्टि करा दी भाई बन्नों ने, ते भाई बन्नों ने संतुष्टि जद कराई ते उस वक्त भाई बन्नों नूं गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज ने अमृतसर साहब बुला के भाई बन्नों तो बीड़ भी लिखवाई गई सी, जिहड़ी बीड़ भाई बन्नों वाली बीड़ वजदी सीगी, जिहड़ी बीड़ दा नाम ही सीगा भाई बन्नों वाली बीड़। गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज ने उतों सेवा लेती सी।
ये जद सेवा जिहड़ी धर्म की गल है, जिथे धर्म की गल आ जाए उत्थे सारा कुछ कुर्बान किया जा सकता है, सब कुछ वारिया जा सकता है। गुरु साहिब जी महाराज कहते ने ये उही मनुख कर सकता है जिहड़ा मनुख संतुष्ट होवे, क्योंकि धर्म के अर्थ ही संतुष्टि ते खड़े ने। पर मनुख हमेशा ही असंतुष्ट रहिंदा है, असंतुष्ट रहिंदा है। ये कदी भी संतुष्ट नहीं हुंदा, बड़ा कुछ करता रहिंदा है। पर गुरु साहिब जी महाराज भगत जयदेव जी कहते ने कि तू अपनी जिहड़ी तेरी दृष्टि है इनू मोड़ के परमात्मा के घर दे विच लेके आ, इनू मोड़ के लेके आ, तेरी सोचनी नू इनू दृष्टि नू तेरी नू मोड़ के अपने घर दे विच लेके आ। लोभाद दृष्ट परग्रहण जद विद आचरण। जे उच्चा जीवन बनाना चाहुंदा है, उच्चा आचरण बनाना चाहुंदा है, परमात्मा के दर तक पहुँचना चाहुंदा है, तो गुरु साहिब जी महाराज कहते ने तैनू अपनी दृष्टि लोभ दे विचों कढ़ के परमात्मा के घर दे विच लेके आउणी पऊगी। ते जद परमात्मा के घर दे विच तेरी दृष्टि आ गई, फिर होर ते पदार्थ धन रंग रूपे ते एक पासे रह जाने ने, फिर तू अपना आप भी परमात्मा के उत्तों दी कुर्बान कर देवेंगा कि मैं सब कुछ है परमात्मा तुहाडे उत्तों दी, तुहाडे धर्म उत्तों दी कुर्बान करदा, अपना आप भी कुर्बान कर देवेंगा। ऐसियां कुर्बानियां दे नाल सिख इतिहास भरिया पिया है। गुरु साहिब जी महाराज कहते ने कि देखी कदे इन्हां गल्लां दा बिल्कुल ध्यान रख के तेरी जिहड़ी दृष्टि है ये पराई जगह ते नहीं जा रही, तेरी सोचनी पराई जगह ते नहीं जा रही। लोभाद दृष्ट परग्रहण जद विद आचरण। लोभी बन के तेरी दृष्टि हमेशा बाहर जा रही है तो हमेशा ही तो असंतुष्ट रहेगा, कदे तो संतुष्ट नहीं रहेगा। ते मनुख दे आम गल है, मनुख असंतुष्ट है। कोई अपने परिवार तो संतुष्ट नहीं है, कोई नगर खेड़े तो संतुष्ट नहीं है, कोई स्टेट तो इलाके तो देश तो खुश नहीं है, कोई मनुख धर्म दे विच भी रहिंदा है अपने धर्म तो भी खुश नहीं है, कोई मनुख रब दे घर दीयां गल्लां सुनावे ते सुनन वाला भी रब दे घर दीयां गल्लां सुनाउण वाले ते खुश नहीं है, असंतुष्ट है। ते जे हजे तक असंतुष्टि बनी हुई है, जे हजे तक भी दृष्टि पराई पासे जा रही है तो हजे ते घर दे विच आए नहीं, हजे ते घर दे विच दृष्टि आई नहीं है। जिन्ना टाइम घर दे विच दृष्टि नहीं आउंदी उन्ना टाइम मनुख नूं अपने परिवार दे विचों परमात्मा दा रूप नज़र नहीं आउंदा। दुनिया कहती है परमात्मा दा की रंग रूप है, सारे जिहड़े ने अपने परिवार किस दे विचों ही परमात्मा दा रूप नज़र आउण लग जांदा है। अगरवाइज जे मनुख दी दृष्टि अपने घर विच आ जावे, अपने घर च जिथे असीं रहिंदे सारी उम्र बतीत कीती, सारी जिंदगी पदार्थ खाधे पहनिया हंडाया सारा कुछ अपने घर दे विच, दृष्टि मनुख दी पराए घर दे विच रही है। सब कुछ अपने घर विच कीता है, बुढ़ेपे दे विच अपनी सेवा करवाई है अपने परिवारक मैंबरां तो, बचपन दे विच उसे घर दे विच माँ बाप ने गोदी चक के खड़ाया, जो कुछ जिंदगी का कीता सारा कुछ अपने घर दे विच कीता, पर मनुख की दृष्टि हमेशा पराए घर दे विचों नहीं निकली। ते जे पराए घर दे विचों दृष्टि नहीं निकली तो माफ करना अज घरां दे विच भगत दानी ते सूरमे पुत भी नहीं जन्म लैंदे, देवते पुत्र किते जन्म ही नहीं लै रहे। कोई है माँ बाप अपने पुत्र धियां तो संतुष्ट कोई नहीं है, कोई है पुत्र धी जिहड़ा अपने माँ बाप तो संतुष्ट होवे कोई नहीं है। असंतुष्टि सारे परिवारां दे विच बनी हुई है। कारण की है कि मनुख दी दृष्टि अपने घर दे विच नहीं आ रही, ये हमेशा पराए घरां दे विच धक्के खांदी है, हमेशा
ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿੰ ਜਦ ਵਿਦ ਆਚਰਣ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਨ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਪਰਾਏ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ? ਇੰਜ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿੰ ਜਦ ਵਿਦ ਆਚਰਣ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਬੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।